Good morning, ma'am. Very good morning. Good Very morning, good ma'am. morning. Good morning, Everyone. Very good morning. Very happy good morning. Pouring weather. It looks like still dark outside here in Delhi. It doesn't look like a bright Same here. day. Beautiful weather. So yeah, Priya, would you want to take the affirmations? Today I haven't brought my laptop upstairs. We leave because today I also need to go at 7 o'clock. Like I've got a work day and there's a lot of office work I need to do in the morning also. Okay. So we'll let's do it wind up tomorrow. faster. We'll wind up on time today. Okay, ma'am. Tomorrow maybe you can. It's a Sunday. Sure thing, ma'am. Sure. So today's chapter is the money magnet, Dhan Ka Chumbak. How to become that magnet of money is what we are going to learn in this. So it is said that money सबसे आसान कर्मा होता है change करना. मतलब अगर बाकी सारी चीजों में से money is the easiest thing that we can actually earn and receive, provided we know the exact attitude जो हमारा पैसे की तरफ होना चाहिए. So ये हमको सीख के सीखना पड़ेगा. ये बहुत आराम से नहीं आता. ये वाला जो चैप्टर है जिस तरह से इसमें पढ़ा हुआ है कि जब भी आप कोई बिल पे करो तो आप बहुत अच्छी फीलिंग से दो, स्पेशली अगर आपको ग्रज भी हो रहा है, यू नो. सो इस चैप्टर में कुछ टिप्स है जो हमको लाइफ लॉन्ग फॉलो करनी होंगी. इमेज हम देख लेते हैं. व्हाट इज इट? इमेज में बहुत सारा पैसा यूनिवर्स से आ रहा है. ब्रह्मांड आपको पैसे दे रहा है हर जगह से, जैसे बारिश हो रही होती है. एंड यू कैन सी दैट देयर इज अ मैग्नेट हियर डाउन. जो सारा पैसा उसकी तरफ, ये जो मैग्नेट दिख रहा है जहां पे बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है. सो ये मैग्नेट विल बी ईच ऑफ अस. हम मैग्नेट हैं, ये हम वो चुंबक हैं. और ये सारा पैसा इधर से उधर से, पैसा कभी भी स्ट्रैटेजी से नहीं आता है. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कर लूंगी तो इतना पैसा आ जाएगा, ये ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, नहीं. अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो, अपनी फ्रीक्वेंसी ग्रेटिट्यूड की रखो. आप देखना कहाँ से पैसा आ जाएगा. बस आप ब्रह्मांड को डिक्लेयर कर दो. डिक्लेरेशन बहुत जरूरी होती है, ठीक है. डिक्लेरेशन का मतलब होता है thank you universe that I'm receiving money from multiple sources of income with ease, and I always have a divine surplus, or my income is constantly increasing. And you just have to declare that. अब how में पढ़ो मत, आप देखना कि पैसा कितनी आराम से आता है. So we'll just study this chapter ध्यान से, especially जो लोग पैसे का जिनके पास struggle है अभी. We really need to internalize this chapter, और इससे हमारा थोड़ा सा attitude shift होगा पैसे की तरफ. Anji, Anu, you reading today? Yes, ma'am. Yeah. Day 9, the money magnet. I quote, "It is only with gratitude that life becomes rich." Unquote. Dietrich Bonhoeffer, Lutheran pastor. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your life, of your whole life. Whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens to people's thoughts as well as their words. And the most people aren't aware of the many thoughts in their head.
Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you're living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you, paid. Today, you're going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill,
Forward it to yourself as an email and write it in the subject line in capital bold letters. Thank you for the money. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across, sorry, and you have paid in the past and write across the front of each one the magic words. Thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money and feel as if you're saying thank you because you have the money to pay the bill. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. Magic practice number 9, the money magnet. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Number 4, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, or the best for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Anu. I'm sure everybody enjoyed your reading. एक line को आप इतने अच्छे से पढ़ रहे थे, एक word पे stress करके. Beautiful. Thank you so much. Truly enjoyed. Yeah. Yes, So ma'am. this chapter, this particular आज का जो assignment है, ये सब पैसे से है और ये lifelong practice है हमारी, because generally ऐसा होता है, पैसे हमारे पास कम क्यों? Why are we not money magnet? Is because हम कोई भी चीज जब पैसे देते हैं तो हमें लगता है गॉड इतना महंगा बिल आ गया, बहुत खर्चा हो गया, आज तो बहुत ज्यादा हो गया, अरे ये तो बहुत महंगे है, अरे टमाटर 170 रुपीज केजी है, माय गॉड, यू नो, लाइक ये सारा. फिर उसके बाद जब हम अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स को पैसे देते हैं, सो इफ दे आर 2, 3, 4, 5 ऑफ देम कमिंग टू अ हाउस, उनको पैसे देते वक्त बोलते हैं इतनी छुट्टियां की, ऐसे लग रहा है कि पैसे ही वेस्ट हो गए, इसको तो हटा के किसी और को, सब पैसे के चक्कर में ये बातें हो रही होती है. ठीक है. सो ये वाला जो एटीट्यूड है ना हमारा, इसके कारण हम मनी मैग्नेट नहीं बनते. आई मीन जब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है उसको पे करना है, तो सपोज वो आया 14,000 रुपीज, ओ गॉड 14,000 रुपीज इज इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू नो, इस तरह करके. सो दिस इज द जनरल एटीट्यूड, यू नो, जनरली जब कोई भी महंगी चीज हम खरीदते हैं या फिर हम किसी को पैसे देते हैं,
तो हमारा यही एटीट्यूड होता है जनरली। रिक्शे वाले से भी हम बार्गेन करते हैं, रिक्शे वाले से हमको बार्गेन करने की वैसे जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर वो 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10 रुपए हमारे हर पॉकेट में से मिल जाएंगे आपको इधर उधर रखे हुए, है ना। एंड समबडी हु इज डूइंग अ फिजिकल लेबर, अगर वो 30 रुपए का डिस्टेंस है और अगर वो 40 भी मांग रहे हैं, बहुत प्यार से दे दो। उतनी उस तरह की फिजिकल लेबर, मतलब मैं जब भी कुछ, आई जस्ट अबोर द आइडिया ऑफ अ मैन पुलिंग अ मैन, मुझे वो ब्रिटिशर्स के टाइम की चीज लगती है कि एक आदमी को खींच करके पुल करके ले जा रहा है। बट ठीक है, उनको अपना रोजी रोटी भी जीना है, वो उनका प्रोफेशन है, रिक्शा चलाते हैं, वो उनका काम है। बट उनको अगर हम 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे या 10 रुपीज एक्स्ट्रा मोर देन जितना आप रोज देते हो, उससे आप ही की जेब भरी रहेगी, यू नो। सो हमेशा पहले देना पड़ता है फिर रिसीव होता है किसी भी चीज के लिए। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो फर्स्ट गिव देन रिसीव, ओके। ये तो लॉ है, इट्स नॉट दैट यू नो बुक में लिखा हुआ है या हर जगह, इट इज ऑलवेज प्रेवलेंट एंड यू नो लाइक दिस इज अ लॉ दैट वी ऑल नीड टू फॉलो। तो अगर हम जब तक छोटी छोटी चीजों के लिए अगर वरी फील करेंगे कि इतना महंगा बिल आ गया, मेरी डोमेस्टिक हेल्पर इतना छुट्टी करती है फिर भी मुझको उसको पूरी सैलरी देनी पड़ रही है, काम इतना गंदा करती है फिर भी इतना सारा मैं पैसा देती हूँ उसको, ये बिल बहुत महंगा है, अरे कपड़े बहुत खरीद लिए इतना। सो अगर हम पैसे को लेके इस तरह की बात करेंगे तो वो एक्चुअली इज इक्वल टू कंप्लेंट्स। कोई भी वरी हो रहा है, कोई भी चीज पैसे को लेके हो रही है, बिकॉज वी आर क्रिएटर्स। कभी भी ऐसा हो कि जब आपको लग रहा है कि आपको पैसे की जरूरत है, आप अपने क्रिएटर की शूज पहन लो या क्रिएटर की हैट पहन लो। ठीक है, क्रिएटर हैट होती है। क्रिएटर हैट का मतलब है कि अब जितने भी पेमेंट्स हम कर रहे हैं वो हमको बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये हमारे आदत पर जाना चाहिए। I mean, it should become a habit with us that whenever we pay any bill, we should be extremely thankful. So ठीक है, जब पैसा आता है, it is very very easy for us to be thankful. You know, obviously कहीं से भी पैसा आया है, किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, वो तो नेचुरल है, वो तो मतलब वैसे ही निकल ही जाएगा, थैंक यू, बचपन से करते आ रहे हैं। बट जब पैसा देते हैं तभी उससे भी ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना, दिस इज समथिंग दैट वी डोंट हैव एज येट। ठीक है, अभी भी हम भूल जाते हैं कि पैसे देते वक्त, अगर आपने कोई सब्जी भी खरीदी है, यू गॉट कॉलीफ्लावर, है ना, आपने गोभी का सब्जी खरीदी है, आप उसके पैसे दे रहे हो, सपोज वो 40 रुपीज की थी, आप 40 रुपीज जब दे रहे हो उसके, तो उसमें इतना सारा ग्रैटिट्यूड भर के दो कि जिसके पास भी, मतलब जो सब्जी वाला है, जो वेंडर है, उसके पास ये जो जा रहा है उसका पैसा खूब मल्टीप्लाई करे और उसके सारे सपने पूरे हो जाएं, वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रख पाए, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दे और इसकी आज सारी सब्जियां बिक जाए। फिर आपने आम खरीदे जाके, सपोज यू गॉट 2 kgs ऑफ मैंगोज, जिसके लिए आपने 120 रुपीज दिए, तो उस 120 रुपीज में इतना ग्रैटिट्यूड भर दो कि इसके सारे आम आज खत्म हो जाएं एंड एवरीबडी यू नो जो इनके आम खाए वो बहुत फ्लरिश करे, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे और इनके भी सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे हो जाएं, जो भी इनके पैसे के वैसे काम रुके हुए हैं वो सारे हो जाए। मन में पैसे देते वक्त ऐसे सोचने में मेरे ख्याल से फ्यू सेकेंड्स भी नहीं लगते, बट देन ब्लेस करने की कोई मौका मत छोड़ो। So it is a very, very beautiful practice for all of us that we bless the money when we are paying. ठीक है, ये तो पहली चीज। और दूसरा, जब कोई बिल आता है, आज की बेसिकली प्रैक्टिस है when you're paying the money. So when you're paying the money, you have to be grateful for the service that you are getting from there. Suppose आप अपने फोन का बिल पे कर रहे हो, जो भी आपका कनेक्शन है, वोडाफोन या ये या जो भी जियो का कनेक्शन है, उसका बिल आया आपके पास। सो अब जो भी बिल आया, सपोज 799 रुपीज का आया, सो बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड आप उस 799 में वो सारी चीजें सोचो जो उस नेटवर्क कनेक्शन की वजह से आप अवेल कर रहे हो। यू नो, इसमें लिखा हुआ है कि सोचो आपको, मतलब जो ओवरसीज आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, आप उनसे भी इतनी आराम से बात कर रहे हो और मिनटों मिनटों घंटों घंटों बात करते रहते हो, है ना। पहले ऐसे होता था, ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी, फिर आपका नंबर आता था, मतलब इंडिया के अंदर ही होता था, बाहर तो बात करना नामुमकिन था। ठीक है, इंडिया में भी ऐसे होता था कि ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी, फिर उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर आपको बताते थे कि आपकी अब कॉल लग गई है, और फिर उसके बाद आप बात कर पाते थे, और जल्दी जल्दी बात करनी पड़ती थी बिकॉज आपको सिर्फ कुछ मिनट का टाइम मिलता था।
सो इमेजिन आजकल तो हम एक व्हाट्सएप कॉल करके जो पर्सन यूएस में बैठा हुआ है आराम से बात कर सकते हैं। हमारे घर में जो वाईफाई राउटर्स हैं उसकी वजह से वी आर टॉकिंग राइट नाउ, वी आर ऑल लॉग्ड इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वी आर इन दुबई, वी आर इन सिंगापुर, वी आर इन कनाडा, वी आर इन यूएस। ऑफ कोर्स हमारे जो यूके और साउथ अफ्रीका यूरोप वाले लोग हैं वो यूट्यूब वीडियो देखते हैं क्योंकि वहां पे 2:30 बज रहा होता है अभी रात का, ठीक है। सो बाकी लोग तो कनेक्टेड ही होते हैं। अब इट इज सो इजी टू कनेक्ट फॉर अस, मतलब वही मैं सोचती हूँ कि सो मेनी इयर्स अगो, इवन 10 years ago इट वाज नॉट पॉसिबल कि हम एक दूसरे को देख पाए स्क्रीन के ऊपर। मतलब व्हाट्सएप कॉल भी 10-15 साल पहले नहीं होती थी। सो टाइम्स हैव चेंज्ड बट स्टिल आवर कंप्लेंट्स हैव आल्सो चेंज्ड। आई मीन दे हैव इंक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इसीलिए अब हमको एक ग्रैटिट्यूड जोन में रहना है। वी डोंट हैव टू कंप्लेन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी एंड बिल्स, चाहे कितना भी हो। हाँ ठीक है, आपको लग रहा है बिजली का बिल फ्रॉड आया है, आप प्लीज जाके कंप्लेन सेल है वहां पे आप जाके अपनी कंप्लेन लगा सकते हैं और वो रिजॉल्व हो जाती है। और वो रिजॉल्व तभी होगी जब आपको ग्रैटिट्यूड होगा, नहीं तो कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होगी। जैसे अगर आपका फ्रिज खराब हो गया, ठीक है, और अगर आप बोले जा रहे हो फ्रिज खराब हो गया, मेरा दूध भी खराब हो रहा है, मेरा खाना भी खराब हो रहा है, मेरा आटा भी खट्टा हो गया, मेरा ये भी खराब, मेरे उसमें भी फफूंद लग गई, मेरा इसमें भी ऐसा हो गया, वो फ्रिज 4 चक्कर लगाएगा फ्रिज का मैकेनिक आपके यहाँ, वो तब भी ठीक नहीं होगा, और ठीक भी करेगा तो अगले दिन से फिर खराब हो जाएगा, बिकॉज उसमें इतनी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। कल हमने वाटर प्रैक्टिस देखी थी ना, किसी ने पोस्ट भी, आई थिंक रीना ने पोस्ट करी थी कि कितने सुंदर वाटर के क्रिस्टल्स हो जाते हैं उसमें, थैंक यू और आई लव यू बोलने के बाद। इसी तरीके से अगर आपका फ्रिज खराब है, आपको रेफ्रिजरेटर और सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, तब जाके उसमें वो एनर्जी ऐसी आएगी कि अब वो मैकेनिक आएगा, पहली बार में पहले 10 मिनट में वो आइडेंटिफाई कर लेगा क्या प्रॉब्लम है और आपका फ्रिज ठीक हो जाएगा। एनर्जी का इतना मेजर खेल होता है जो हम रियलाइज भी नहीं करते हैं, ठीक है। सो आज की प्रैक्टिस इज अबाउट गिविंग दैट एनर्जी टू मनी, स्पेशली जब किसी और को दे रहे हो। गिव अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी 580 बहुत ज्यादा होती है। सो गिव दैट एनर्जी, उस पैसे के अंदर वो भर दो एनर्जी पैसे देते वक्त। और अगर बिल पेमेंट कर रहे हो तो एनर्जी आप उसमें उस बिल से, मतलब जो जिस भी चीज का बिल है उसको आपने कैसे यूज किया है उसके लिए थैंक यू बोल के। जैसे वाईफाई का बिल दे रहे हो तो वाईफाई की चीजों के लिए थैंक यू, मतलब क्या क्या आप वाईफाई से करते हो। आप अपने यूट्यूब चलाते हो, आप अपना गूगल वो करते हो, आप व्हाट्सएप कॉल करते हो, आप व्हाट्सएप टेक्स्ट करते हो, ठीक है। जो जो चीजें आप व्हाट्सएप की मतलब उसकी वाईफाई और उसकी वजह से यूज करते हो वो सारी चीजें। सो वाईफाई की वजह से ऑफकोर्स हम अभी जूम कर पा रहे हैं, अगर वाईफाई नहीं होता तो शायद नहीं कर पाते, है ना। फिर जो फोन की वजह से फोन का बिल दे रहे हो तो उसका, गैस का बिल दे रहे हो, गैस सिलेंडर है आपके पास या पाइपलाइन वाली गैस है, जो भी है, तो आप वो सारे यूजेस सोचो जो गैस की वजह से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आप खाना बना पाते हो, आप चाय बनाते हो, आप कॉफी बनाते हो, आप खाने को गर्म करते हो, आपको कोई तेल गर्म करना होता है वो भी आप करते हो, है ना, वो सारी चीजें। तो उसके लिए बहुत थैंक यू फील करो कि मैं गैस की वजह से इतनी सारी। आप डोमेस्टिक हेल्पर की सैलरी दे रहे हो, आप सोचो रोज आपको करना होता स्वीपिंग, मॉपिंग, यूटेंसिल्स क्लीनिंग, दिस कुकिंग दैट, ये तो फैसिलिटी है ना हमको इंडिया में, definitely, that we don't have to think about cleaning part of it at all. We have people who can do it, right? And even if they are coming 25 days in a month, 25 दिन तो आगे करते हैं ना, सोचो वो 25 दिन भी अगर हमको खुद करना पड़े। सो इसलिए उनको सैलरी देते वक्त बिल्कुल चुप, बस मन में ग्रैटिट्यूड कि वो आते हैं काम करते हैं। हाँ अगर आपको नहीं पसंद आ रही है या कुछ वो है तो आप बेशक अपने लिए दूसरी कोई हेल्पर ढूंढ लो, डजंट मैटर, बट पैसे जब दे रहे हो पैसे के साथ कंप्लेन को इक्वेट मत करो। उनका जो एब्सेंटिज्म है आपकी डोमेस्टिक हेल्पर्स का, पैसे के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैसे देते वक्त आपके दिल में बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुक्राना होना जरूरी होता है, चाहे वो 5 रुपए भी क्यों ना हो। इसमें लिखा हुआ है ना बहुत क्लियरली दैट शुक्राना अमाउंट ऑफ मनी पे डिपेंडेंट नहीं है, शुक्राना मनी पे डिपेंडेंट है कि मनी के साथ आपने उसको जोड़ा हुआ है। कितना अमाउंट ऑफ मनी है ये इररेलेवेंट है, ठीक है, चाहे वो 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, कितने भी हो, 2 रुपए ही क्यों ना हो, बट amount of gratitude is important. Amount of money that you're paying is not important.
सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे, दैट आज हमको सारे बिल पेमेंट्स अब से जो भी करने हैं उसके लिए हमको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड लाने की जरूरत है, पहली चीज। और दूसरा, जब भी कोई बिल हम पे करें तो अगर हमारे पास उसकी हार्ड कॉपी है ना, जैसे आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमको वो बिल मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल, उस पे हमको लिखना होगा बहुत सारा थैंक यू बोल के, थैंक यू पेड। और फील करो कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना सारा पैसा देने के लिए कि मैंने इतनी लंबी ग्रोसरी की लिस्ट पूरी की है एंड आई परचेज एवरीथिंग। फिर उसके बाद आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने जाते हो, वहां आपने जो पैसे दिया, देते वक्त पैसे को ब्लेस करो, है ना। प्लस जितना भी पैसा आपने, अगर जो भी बिल आया है, अगर आप बिल्कुल सड़क वाले वेंडर्स से खरीद रहे हो जो हॉकर्स होते हैं, तब तो बिल नहीं मिलेगा। लेकिन आज की प्रैक्टिस में हमको एक कच्चा बिल बनाना पड़ेगा उसका। सो मैं कच्चा बिल तो ऐसे नहीं बनाती, बट मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही लिख देती हूँ दैट सपोज मैंने 140 रुपीज के 2 kg मैंगोज खरीदे, तो वो मैं लिख देती हूँ आके, जहां जहां मेरे पास बिल नहीं है। बिल होते हैं तो ऑफकोर्स थैंक यू पेड दिल में बहुत सारा प्यार और शुक्राना भर के लिखना होता है। और अगर आपके पास बिल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिना बिल के हम करते हैं, सो अगर बिल नहीं है तो फिर हम अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही लिख रहे हैं ₹140 फॉर मैंगोज, thank you paid and thank you universe for giving me the money to pay this to pay for the mangoes, such nice tasty mangoes। फिर उसके बाद इस तरह से आपको मतलब शुक्राना हर एक एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखना द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो आप एक्सपेंसेस पे देते हो, उसकी वजह से आप लक्ष्मी जी के फेवरेट बन जाते हो, एंड देन यू विल बिकम अ मनी मैग्नेट, धन के चुंबक, एंड देन यू विल स्टार्ट मैग्नेटाइजिंग मनी फ्रॉम हियर एंड देयर, आपको पता भी नहीं होता। मल्टीपल सोर्स, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से that thank you universe for giving me money from multiple sources of income with ease and joy, no struggle, struggle and effortlessness are universe's call। अगर किसी चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा यूनिवर्स की पावर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अपना बेस्ट दो, आप अपने काम में बेस्ट दो, ठीक है। बाकी चीजें और थैंक यू बोल बोल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, बाकी चीज छोड़ दो आप। इस ब्रह्मांड की शक्ति बहुत ज्यादा है, हमारे सोचने के परे। we can't even imagine what we can receive in life, and life becomes like that। हमको एक्चुअली अपने मिजरीज में रहने की आदत पड़ जाती है, ठीक है, तो वो हमारा नोन हो जाता है। अब जब नोन फील्ड में होते हैं, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब है बीइंग सुपरनैचुरल, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हम लोगों को इतनी आदत पड़ जाती है नोन में रहने की, और मिजरी, फियर एंड चिक चिक पिक 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 करना, दैट बिकम्स द नोन जोन। नोन मतलब हमारी जानकारी, हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है वो। और नोन जोन से लोगों को अननोन जोन में स्टेप करने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है। कई लोगों को तो आदत ऐसी पड़ती है उस जोन में रहने की कि उनसे नहीं होता है चेंज अननोन में, ऐसे कई बार वो फेयर में रहने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो उनका पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है और उनको पता नहीं लगता कि वो फेयर में रहते हैं, वो वैसे ही बन गए अब, ठीक है। तो फिर वो जो अननोन जोन होता है उसमें वो नहीं जा पाते हैप्पीनेस और उसमें, अनलेस इस तरह के प्रैक्टिसेस हमारे पास आए कि कोई हाथ पकड़ के याद दिलाए। लेकिन आपको रिसेप्टिव भी तो होना पड़ेगा ना, किसी से बात कर रहे हैं कि नहीं, यू कैन रियली बी हैप्पी एंड यू कैन हैव ऑल द फ्रीडम ऑफ लाइफ। ये भी तो एक तरह की फ्रीडम है ना, कि पैसे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी पाना, ये भी तो एक फ्रीडम होती है। आपको अपने वेट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, अपने हेल्थ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, आपको इतनी फ्रीडम है। फ्रीडम टू ईट, फ्रीडम टू स्लीप, freedom to wake up, freedom to do whatever you want to, freedom to pursue your hobbies, freedom from money, freedom from anybody, any person also। That doesn't mean आप उनके साथ नहीं रहोगे, मतलब साथ रहते हैं, बट आपको पूरी फ्रीडम है अपना सारा चूज करने की। सो इसलिए प्रेइंग फॉर फ्रीडम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक चेन से निकल गए, बट चेन से किसी भी चीज में। फ्रीडम टू ईट ऑल्सो, कहाँ हमारे पास है, अगर 2 बड़े बड़े मीडियम साइज पिज्जाज अगर हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हमारे पास फ्रीडम टू ईट है? नहीं है। हमको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं खा पाऊंगी, मेरा वेट बढ़ जाएगा, ये हेल्दी नहीं है, ये है वो है, मैं इतना सारा जंक फूड नहीं खा सकती, ऐसे ही मन में आएगा। बट कहाँ है, दैट मीन्स फ्रीडम टू चूज नहीं है ना। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड करते हो, आपका मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ जाता है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, एंड स्टिल योर स्किन इज ग्लोइंग एंड गेटिंग टाइटर एंड टाइटर। ओके, ग्रैटिट्यूड में ऐसी पावर भी होती है
सो दैट इज कॉल्ड बीइंग सुपरनैचुरल। रीड करना आप कभी, वो वाली बुक आपको मिलती है तो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखी है, बीइंग सुपरनैचुरल। इट टॉक्स अबाउट स्टेपिंग इनटू द अननोन, टेकिंग द रिस्क, पुटिंग समथिंग एट स्टेक, यू नो। सो इट सेज दैट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस होगी। सो ये प्रैक्टिसेस कर करके हम वैसे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इजंट इट? कुछ कुछ चीजें हमने कभी की नहीं है, हमने हमेशा चिक चिक करके पैसे दिए हैं, स्पेशली अगर डबल बिल आया है तो, या मतलब डोमेस्टिक हेल्पर्स को हमने बोला है देखो इस बार तो मैं दे रही हूँ तुमको पूरी सैलरी, तुमने 6 दिन की छुट्टी की है। पैसे देते वक्त मत बात करो, बात करो आप उनसे, प्यार से बात करो, ऐसे चिल्ला के चीख के ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब उस तरह से आप गुस्सा दिखा के, और पैसे में वो सारी एनर्जी जा रही है, इसका मतलब है कि अब आपके जेब से नुकसान होना शुरू होगा, क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी पैसे के साथ एसोसिएट कर दी है। ठीक है, सो दिस इज द चैप्टर अबाउट पैसे देते वक्त सिर्फ ग्रैटिट्यूड और प्यार, लव एंड ग्रैटिट्यूड, लव एंड ग्रैटिट्यूड, लव एंड ग्रैटिट्यूड, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस। आज हमको 10 पेड बिल जो हमने हाल ही में पेड किए हैं, हो सकता है आपका कार लोन, होम लोन हो सकता है आपके मैंगोज के पैसे हो, आपने टोमेटो केचप की बोतल खरीदी हो, ग्रोसरीज की लिस्ट पूरी आपने खरीदी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, गैस का बिल पे किया, वाटर का बिल पे किया, हो सकता है आपने कपड़े ऑल्टर या स्टिच कराए हो, उसके पैसे हो सकते हैं। जो भी चीज आपने कोई सी भी रैंडम 10 पेमेंट्स आपको लिखनी है और उन बिल्स पे लिखना है थैंक यू पेड। अगर आपके पास बिल नहीं है तो आजकल लोग बहुत पेटीएम और गूगल पे यूज करते हैं, तो आप वो निकाल लो, अपने लास्ट 10 पेमेंट्स आप देख लो कौन सी, जरूरी नहीं है लास्ट 10 हो, ये कोई सी भी हो सकती है, हो सकता है आपने 1st को की हो, 5 तारीख को की हो, आप उसमें से निकाल लो कि आपने कौन कौन सी पेमेंट्स किए। वैसे 10 पेमेंट हमको बहुत आराम से याद आ जाएंगी। आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख लो ₹100 पेड फॉर आयनिंग द क्लोथ्स, ओके, और फिर ड्राई क्लीन कराएं तो so much amount paid for clothes dry cleaning to so and so, थैंक यू पेड। हर बिल के साथ में ₹this इसको दिए हैं, थैंक यू पेड, डेट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपने प्रेस को 100 रुपए दिए हैं तो ₹100 पेड टू राहुल द आइनिंग पर्सन, थैंक यू पेड, और दिल से फील करो, बहुत ब्लेस करो उस पैसे को। फिर दूसरा आप आए, फोन का बिल आपने दिया ₹900 एंड वट एवर पेड फॉर सो एंड सो फोन बिल टू जियो कंपनी, थैंक यू पेड। फिर थर्ड पे वाईफाई का दिया है सपोज ₹999 पेड फॉर वाईफाई टू सो एंड सो, थैंक यू पेड, और दिल में फील करो थैंक यू कि उसकी वजह से आपने क्या क्या सर्विसेज अवेल करी। फिर चौथे नंबर पे जाओ कि आपने whatever melons खरीदे, watermelon या जो भी, so rupees so and so paid for watermelon, thank you paid। ठीक है, तो इस तरह से आप 10 बिल के साथ में थैंक यू पेड करो, और 10 बिल, और आज के बाद से जो भी पेमेंट कर रहे हो, अगर वो हार्ड कॉपी बिल की आती है तो थैंक यू पेड, और अगर वैसे ही आप सब्जी वालों से ले रहे हो या कुछ ले रहे हो तो बहुत सारा पैसे को ब्लेस करके वापस देना है। ठीक है, अब इसमें से एक और प्रैक्टिस है कि अगर कोई ऐसा बिल है जिसके पैसे नहीं, आपको पे करना है वो, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा, मतलब उसके ऊपर भी लिखो थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, और 1 मिनट विजुअलाइज करो कि आपके पास पैसा आ गया है और आपने उसको पे कर दिया है। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस है अनपेड बिल के लिए। और फिर उसके बाद जब पैसा आ ही जाएगा, ऑब्वियसली इतना ग्रैटिट्यूड हम पहले से ही डाल देंगे तो पैसा आ ही जाएगा, पैसा आएगा तब उसके ऊपर थैंक यू पेड लिख देना। सपोज आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया है 40,000 रुपीज, ठीक है, और इस वक्त आपके पास उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए 40,000 रुपीज दे पाओ, तो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी आई है तो उसके सब्जेक्ट में लिखना होगा, जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है वहां पे अपने आप को ईमेल करना है वो, उसमें लिख देना थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, या आप हाथ से बना लो, आप हाथ से बना लो ₹40,000 फॉर कोटक महिंद्रा, और जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है, ICICI बैंक और व्हाटएवर SBI, तो वो सो एंड सो बैंक ₹40,320 एग्जैक्ट अमाउंट लिख देना, एंड थैंक यू फॉर द मनी, और वो जब पैसा आ जाएगा तो थैंक यू फॉर द मनी को काट के थैंक यू पेड कर देना। तो ये भी प्रैक्टिस है, पेड बिल्स के लिए भी है, अनपेड बिल के पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए भी है।
सो दिस इज व्हाट, और इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग प्रैक्टिस जो हमारी होती है, मॉर्निंग में हम काउंट माय ब्लेसिंग्स लिखेंगे, 10 ब्लेसिंग्स रीड करेंगे और एक एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, मैजिक रॉक हम अपना पत्थर हाथ में लेके पूरे दिन को स्कैन करेंगे, एक एक चीज के बारे में सोचेंगे, उसमें से बेस्ट चीज निकालेंगे और उसको थैंक यू बोल के सुझाएंगे। So this is the practice for today, money magnet. So this will make us dhan ka chumbak, and then we'll see that we will start magnetizing money. Okay, now we go to the other book, Power of the Subconscious Mind. जो हम forgiveness का chapter कर रहे हैं, so अब हम करेंगे why there was one gentleman, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो हम देखेंगे कि वो किस लिए उसकी तबीयत खराब रहती थी, कि वो जान जान के अपने ऑफिशियल टूर्स करता था, एंड ही वाज चीटिंग ऑन द फैमिली और समथिंग लाइक दैट, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर आई हैड रेड लास्ट टाइम. सो लेट्स रीड इट, प्रिया. Yes, ma'am. Why he could not be healed. This is a case history of a married man with 4 children who was supporting and secretly living with another woman during his business trips. He was ill, nervous, irritable, and cantankerous, and he could not sleep without drugs. The doctor's medicine failed to bring down his high blood pressure of over 200. He had pains in numerous organs of his body, which doctors could not diagnose or relieve. To make matters worse, he was drinking heavily. The cause of all this was a deep unconscious sense of guilt. He had violated the marriage vows, and this troubled him. The religious creed he was brought up on was deeply lodged in his subconscious mind, and he drank excessively to heal the wound of guilt. Some invalids take morphine and codeine for severe pains. He was taking alcohol for the pain or wound in his mind. It was the old story of adding fuel to the fire. The explanation and the cure. He listened to the explanation of how his mind worked. He faced his problem, looked at it, and gave up his dual role. He knew that his drinking was an unconscious attempt to escape. The hidden cause lodged in his subconscious mind had to be eradicated. Then the healing would follow. He began to impress his subconscious mind 3 or 4 times a day by using the following prayer. My mind is full of peace, poise, balance, and equilibrium. The infinite lies stretched in smiling repose within me. I'll read it again. The infinite lies stretched in smiling repose within me. I'm not afraid of anything in the past, the present, or the future. The infinite intelligence of my subconscious mind leads, guides, and directs me in all ways. I now meet every situation with faith, poise, calmness, and confidence. I'm now completely free from the habit. My mind is full of inner peace, freedom, and joy. I forgive myself, then I am forgiven. Peace, sobriety, and confidence reign supreme in my mind. He repeated this prayer frequently as outlined, being fully aware of what he was doing and why he was doing it. Knowing what he was doing gave him the necessary faith and confidence. I explained to him that as he spoke these statements out loud, slowly, lovingly, and meaningfully, they would gradually sink down into his subconscious mind. Like seeds, they would grow after their kind. These truths on which he concentrated went in through his eyes
His ears heard the sound. Uh, just a moment, ma'am. Yeah. These truths on which he concentrated went in through his eyes, his ears heard the sound, and the healing vibrations of these words reached his subconscious mind and obliterated all the negative mental patterns which caused all the trouble. Light dispels darkness. The constructive thought destroys the negative thought. He became a transformed man within a month. सो ये हिंदी में अगर समझाएं तो एक आदमी था जिसकी वाइफ और 4 बच्चे थे। तो एक ये फैमिली थी, एक और उसकी फैमिली थी जिसमें वो किसी और वुमन के साथ में रहता था। पूरी गृहस्थी, मतलब पूरा सपोर्टिंग फाइनेंशियल वगैरह सब कुछ था। तो वो बिजनेस ट्रिप पे उसके साथ जाता था और यहाँ पे भी उसकी फैमिली थी, उसकी वाइफ और उसके 4 बच्चे। तो इस तरह उसकी 2 गृहस्थी वो चला रहा था। तो जिसके कारण उसको मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा रहती थी, या जो भी है, गिल्ट का फैक्टर था। उस गिल्ट के कारण उसको रात को नींद आनी बंद हो गई एंड ही स्टार्टेड टेकिंग द स्लीपिंग ड्रग्स, मतलब सोने के लिए दवा उसने लेनी शुरू कर दी। मतलब वो लेता था ड्रग्स, तभी उसको नींद आती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको इतना ज्यादा गिल्ट रहने लगा कि उसने अल्कोहलिज्म शुरू हो गया उसका, मतलब उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। और फिर ऑब्वियसली ड्रिंक करेंगे पूरे घर में, उसकी वजह से पूरा कलेश हो जाता है। ये सारी चीजें उसके साथ चल रही थी क्योंकि उसके मन में गिल्ट, फियर, फ्रस्ट्रेशन, वो सारे फीलिंग्स रहते थे। उसके बाद वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिला और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको एफर्मेशन बताई टू बिकम फ्री फ्रॉम द गिल्ट। और ये जो इसमें लंबी सी एफर्मेशन ली है कि मेरे अंदर पीस है, काम है, हेल्थ है, हैप्पीनेस है और सोब्राइटी है। सोब्राइटी मतलब सोबर होना, ज्यादा ड्रिंक या स्मोकिंग नहीं करना, सोब्राइटी। तो ये सारा चीजें उन्होंने ये बार बार रिपीट की और वो एक दिन में 4 से 5 बार ये रिपीट करते थे क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा गिल्ट था। और जिसके कारण वो फाइनली रिजॉल्व हो गया इशू और उन्होंने वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन बैक कर लिया एंड ही बिकेम अ ट्रांसफॉर्म्ड मैन विद इन अ मंथ। 1 महीना लगा उनको, दिन में 4 से 5 बार ये एफर्मेशन करते थे जो हमने पढ़ी है अभी, और 1 महीने में टोटली सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो गई और वो अलग तरह के इंसान बन गए। हाँ जी। Refusing to admit it. If you are an alcoholic or drug addict, admit it. Do not dodge the issue. Many people remain alcoholics because they refuse to admit it. Your disease is an instability and inner fear. You are refusing to face life, and so you try to escape your responsibilities through the bottle. As an alcoholic, you have no free will, although you think you have, and you may even boast about your willpower. If you are a habitual drunkard and say bravely, I will not touch it anymore, you have no power to make this assertion come true because you do not know where to locate the power. You are living in a psychological prison of your own making, and you are bound by your beliefs, opinions, training, and environmental influences. Like most people, you are a creature of habit. You are conditioned to react the way you do. इसमें ये बताया है कि जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जिनको किसी भी तरह के एडिक्शन है, चाहे वो टोबैको की हो, चाहे वो सिगरेट्स की हो, चाहे वो ड्रिंकिंग की, आप कभी भी उनसे बोलोगे तो कि आप बहुत ज्यादा पीते हो तो वो डिफेंसिव होते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हाँ मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ। दे विल ऑलवेज गिव यू रीजन व्हाई दे आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया कि अगर वो कोशिश भी करेंगे ना कि वो ये हैबिट छोड़ दें, तो वो छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो हैबिट मतलब वो इनके अंदर एक नॉर्मल सेल्फ है, लाइक उनके सांसों सांसों में वो चीज होती है। तो इसमें बताया है कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, अगर आपको ये जो गंदी आदतें होती है,
ठीक है, ये एलिमिनेट करनी है तो पहले ओन करो, एक्सेप्ट करो कि यस आई डू इट, आई नो आई डू इट। ओके, डिफेंसिव होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सो इट इज ओके इफ यू आर ड्रिंकिंग। अगर बेटर होना है तो ये सारे इंटरनल फियर्स और वरीज हैं, वो अल्कोहल में उसकी वजह से निकलते हैं, लाइक ओवर ड्रिंकिंग की वजह से। दैट मीन्स यू आर एक्चुअली नॉट ब्रेव बट यू आर वेरी वेरी कावर्ड। ओके, दैट्स व्हाई यू आर वेंटिंग इट थ्रू दैट हैबिट्स। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे कम कर सकते हैं और कैसे उन लोगों को करना है। ठीक है, सो इसमें लिखा हुआ है दैट आप मतलब वो पी के आप ऐसे ही हो जाते, यू बिकम अ क्रीचर ऑफ हैबिट एंड यू आर कंडीशन टू रिएक्ट द वे यू डू। और जिस तरह के आपके रिएक्शंस होते हैं और वो सब, और कोई फ्री विल नहीं होती है कुछ भी उस वक्त। अगर आप ये सोचो कि नहीं नहीं मैं पीना छोड़ देता हूँ, तो इतनी आराम से वो होता नहीं है। तो बट हम देखेंगे आगे क्या एफर्मेशंस है क्या है। हाँ जी। Building in the idea of freedom. You can build the idea of freedom and peace of mind into your mentality so that it reaches your subconscious depths. The latter, being all powerful, will free you from all desire for alcohol. Then you will have the new understanding of how your mind works, and you can truly back up your statement and prove the truth to yourself. अब एफर्मेशन आगे जो भी मिलेगी, बट हाँ ये आइडिया ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम दिस, अगेन दैट वर्ड फ्रीडम इज सो इम्पोर्टेंट, इजंट इट? Free from that desire to have. Of course, one can have alcohol, but not to fill up the void, to enjoy. Okay, that's a different way of drinking. मजे करने के लिए, आप अच्छा फील गुड कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे एसेंस में दे एंजॉय देयर ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक लाइक गट गट कर करके बिल्कुल कि चढ़ जाए और वो अपने गम भूल जाए। दैट्स अ डिफरेंट, दैट इज कोपिंग मैकेनिज्म। हम कोपिंग मैकेनिज्म के लिए या फिर कोई वॉइड को फिल अप करने के लिए अगर अल्कोहल पिएंगे, पहली बात तो फैमिली दूर हो जाएगी उस पर्सन से। कोई रहना चाहता है कोई भी इस तरह के पर्सन के पास जो हर जगह सीन क्रिएट कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं गिर के पड़ रहे हैं, वी डोंट वांट टू स्टे विद दैट पर्सन, नो। सो फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और कभी कभी वो इंटरनली इतना बाइंड अप हो जाता है कि वो पूरी फैमिली में हेल्थ के एस्पेक्ट्स में निकलता है। ऑफ कोर्स जो पर्सन पी रहा है उसकी हेल्थ तो डेफिनेटली खराब होती है, बट पूरी फैमिली की मेंटल हेल्थ खराब होती है, और मेंटल हेल्थ ही फिजिकल हेल्थ में ट्रांसलेट होती है। सो इसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में फ्रीडम का पैटर्न बनाना पड़ेगा, दैट यस आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल। मतलब हैप्पीनेस मेरी दारू पी के आती है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, यू नो। सो इसलिए having that freedom, you know, that I am liberated, I am free from any kind of a habit, bad habit, मुझे पता है ये मेरे लिए गलत है, ये होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड में फ्रीडम के पैटर्न्स बनाने होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। 51% healed. If you have a keen desire to free yourself from any destructive habit, you are 51% healed already. When you have a greater desire to give up the bad habit than to continue it, you will not experience too much difficulty in gaining complete freedom. Whatever thought you anchor the mind upon, the latter magnifies. If you engage the mind on the concept of freedom, freedom from the habit, and peace of mind, and if you keep it focused on this new direction of attention, you generate feelings and emotions which gradually emotionalize the concept of freedom and peace. Whatever idea you emotionalize is accepted by your subconscious and brought to pass. मतलब उसमें वो ही लिखा हुआ था सेम थिंग कि सबकॉन्शियस माइंड में हमको ये आइडिया देना है कि आई एम फ्री और मैं बहुत इजीली एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई एम रेडी टू चेंज। ठीक है, सो ये वाला फिर हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, विच इज अगेन टू डू विद अल्कोहलिज्म। The law of substitution. Realize. Sorry to intervene, ma'am. You have to leave early today. 7 हाँ, तो अभी हम लोग थोड़ा सा शेयरिंग भी करेंगे। आज शेयरिंग करना है आपको।
एक मिनट मैं ये देख लेती हूँ कितना बड़ा है। ओके, सो हम ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, फिर रीना आई विल लॉग आउट। जी The law of substitution. Realize that something good can come out of your suffering. You have not suffered in vain. However, it is too foolish to continue to suffer. If you continue as an alcoholic, it will bring about mental and physical deterioration and decay. Realize that the power in your subconscious is backing you up. Even though you may be seized and melancholy, you should begin to imagine the joy of freedom that is in store for you. This is the law of substitution. Your imagination took you to the bottle. Let it take you now to freedom and peace of mind. You will suffer a little bit, but it is for a constructive purpose. You will bear it like a mother in the pangs of childbirth, and you will likewise bring forth a child of the mind. Your subconscious will give birth to sobriety. सो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कि आप मतलब जो इंसान बहुत अल्कोहल लेता है वो ये सोचे कि अगर मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी अल्कोहल पे थी तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो मुझसे हटा भी सकता है, लेकिन ये भी रियलाइज करना है कि जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि बॉडी बहुत रिवोल्ट करेगी, बॉडी बहुत आराम से नॉन अल्कोहलिज्म में ले जाने नहीं देती है, बहुत पैंग्स होंगे, मसल्स में दर्द होती है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल हार्ट सिंक होता जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम होती है जब अल्कोहल से, बिकॉज बॉडी एक कंफर्ट जोन में आ गई, आप रोज पीते हो तो आपके सारे ऑर्गन्स को मेमोरी हो जाती है उस चीज की, तो उससे निकलना बहुत इम्पॉसिबल होता है लोगों के लिए। लेकिन एक तरह का लाइक इसमें लिखा हुआ है जैसे एक माँ होती है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग लेबर पेन होता है ना, और उसके बाद एक बेबी बॉर्न होता है तो एक न्यू लाइफ आ गई है, लेकिन उस दर्द से सफर होके ही वो बेबी बर्थ हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप अल्कोहलिज्म से या किसी भी गलत आदत से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो जैसे लेबर पेन जैसा ही मतलब आपकी बॉडी रिवोल्ट करेगी, उसको बोलते हैं हम बॉडी रिबाउंड। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी रिबाउंड्स होते हैं, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल फोरहेड पे पसीने आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, नहीं रहा जा रहा है, पूरा ऐसा गला जैसे सूखता है, कांटे चुभते हैं, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं, और दोबारा से वो पर्सन अल्कोहल उठा लेता है, क्योंकि एक्चुअली बॉडी में फिजियोलॉजिकली तो सबके बस का होता नहीं उस हिसाब से करेज होना दैट दे सफर दैट पेन। तो जनरली लोग उस पेन को नहीं सफर कर पाते हैं, लेकिन इसीलिए पहले डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि देखो ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही, बॉडी रिबाउंड करेगी आपकी और वो मांगेगी वापस अल्कोहल, लेकिन उस वक्त अपना ये रखना कि मेरा सबकॉन्शियस एक सोब्राइटी को बर्थ दे रहा है, और मतलब ये छोटा सा जो 2-3 दिन का जो वो पेन होता है या जो भी बॉडी रिबाउंड होता है उसको सफर करना, बिकॉज वो नॉर्मल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत आराम से इस पार से उस पार लेके जा पाएगा, बट हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन इट। ओके, सो ठीक है, we'll read only so much today. Thank you Priya for reading so beautifully and coming to the aid of reading फिर cause of alcoholism और magic steps to leave alcoholism हम कल पढ़ेंगे। And ma'am, this can be synonymous to the addiction of phone that we are facing nowadays. The phone, the digital, है ना? आजकल अल्कोहलिज्म हमारे लाइफ में तो इस तरह का मुझे लगता है एडिक्शंस है। Yeah, that's a severe addiction. और हम रियलाइज भी नहीं करते ना, पहली बात कि वो एडिक्शन है, हम रियलाइज ही नहीं करते कि उस चीज का हमको एडिक्शन है। Yeah, we give our argument that it's good for, like इन्होंने बोला ना कि जैसे वो अपना आर्ग्यूमेंट देंगे, नहीं ये नहीं है, इतना थोड़ा सा पिया था, थोड़ी देर पिया था, डिफेंसिव हो जाते हैं ना, डिफेंसिव हो जाते हैं, ओन नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है ये मेरी गलती है, हाँ ठीक है मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। एडिक्शन गुस्से का भी होता है हमको। मैम मैं शेयर ये करना चाह रही थी, मेरी फर्स्ट शेयरिंग है, इट मे साउंड थोड़ी लिटिल फनी, लेकिन बहुत मुझे मैं बहुत खुश हुई और मुझे इस प्रोसेस में थोड़ा ट्रस्ट भी और बढ़ा, तो मैंने सोचा कि शेयर तो करना चाहिए।
एक्चुअली मैं जहाँ से मिल्क लेती हूँ ना, वो उनके पास बस एक ही गाय है, वो एक दो लोगों को ही देते हैं। और मैं उनको जो पेमेंट के लिए कैश नहीं पे करती हूँ, बल्कि गाय के लिए जो उनका चारा होता है मंथली, वो जौ चना और कुछ भी उनको डायरेक्ट परचेज करके देती हूँ। और मैं पेमेंट भी वेंडर को ही करती हूँ, सो मिस यूज ना हो। और मैं वीकली गाय को भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खिलाती हूँ। तो वो मुझे बड़ा अटैचमेंट हो गया है कि वो मतलब मेरी है। और मैं 2-3 दिन से नहीं ले रही थी मिल्क, तो मुझे आइडिया नहीं था। फिर जब कल मैंने उनको बोला कि आज से स्टार्ट कर दीजिए दोबारा देना, तो उन्होंने बोला कि उनकी तो गाय 2-3 दिन से मिसिंग है, और वो लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, कहीं नहीं मिल रही है। तो फिर कल सुबह से मैंने ये करना स्टार्ट किया, उसी के लिए मैनिफेस्टेशन, और पूरे दिन उनको बोलना, और थोड़ा सा मैंने ओपोनोपोनो का भी सपोर्ट लिया थोड़ा, अपने माफी मांगी, कुछ मेरे से गलती हुई है, तो ऐसा पूरा किया। और मैं आज सुबह जो है वो उनको मिल गई वो गाय। तो मुझे ग्रेट। और वो लोग जो है पूरा मतलब छोड़ चुके थे उसकी उम्मीद। वो तो कह रहे थे कि हमको कहीं नहीं मिलेगी। और उनका बेटा आज ही उनका फोन आया कि वो सुबह अपने फ्रेंड के घर कहीं जा रहा था किसी वजह से, और वो यहाँ से 10-12 किलोमीटर, और वो कहाँ से मिल गई, वो लोग खुद भी सरप्राइज है कि ये कैसे मिल गई। That's amazing. That's really, really incredible. रियली So this is like आपने क्या blessing की थी? मैंने यही सब मैम, मैंने कि वो मतलब मेरे को इतना ज्यादा उनसे होता है ना, जैसे मिल्क मिलता है तो वो भी हमको एकदम प्योर मिलता है, जब हम देख रहे हैं कि वो एक ही गाय है और चारा भी हम देते हैं उनको, तो उससे मिल्क भी आता है, फिर उसी से घी बन जाता है, उसी से पनीर, उसी से कर्ड वगैरह। तो ब्लेसिंग वो मैंने यही लिखी थी, मैंने विजुलाइज किया था कि वो वहीं पे खड़ी हैं जहाँ खड़ी रहती हैं डेली, और हम उनको चारा खिला रहे हैं, और मिल्क वो मेरे घर लेके आ रहा है। मैंने पूरा विजुअलाइजेशन किया था इस तरह का कि जैसे वो हैं, वापस आ गई हैं। और मैंने थोड़ा सा सॉरी भी बोला था कि अगर हमसे कोई गलती हुई है अगर, तो वो सब उसके लिए माफी मांगी बहुत ज्यादा। तो फिर वो मतलब जब मुझे पता लगा कि वो वापस आ गई, तो मतलब मुझे बहुत 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 खुशी हुई, क्योंकि वो लोग 3-4 दिन से ढूंढ ढूंढ के पूरा थक चुके थे, और वो लोग नहीं सोच रहे थे कि अब वो वापस मिलेंगी कहीं। तो इसलिए रात में वो कहाँ कौन ले गया पता नहीं, लेकिन फिर बाद में उनका बेटा ऐसे ही अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था, वो उसने बताया कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था ड्यू टू सम अदर रीजन, और वो रास्ते में उनको एक गाय के झुंड में खड़ी हुई मिल गई। Great, congratulations. This is how you can use. जैसे मुझे वो याद आ रहा है रॉन्डा बर्न का जो डॉगी था। वॉलेट, हाँ मुझे भी सेम वही चीज याद आई कि ये वॉलेट जैसा। डॉग वाला भी था ना पावर बुक में, कि उनका जो डॉग है ना, पेट डॉग, वो भी गुम हो गया था, है ना मैम? वो वापस आ गया। या और मैं जब ये सब कर रही थी तो मुझे मन में ये लग रहा था कि पता नहीं है मैं कर तो रही हूँ, इसका कुछ होगा भी कि नहीं। और फिर मैंने मॉर्निंग में सोचा कि आ गई हूँ आ गई हूँ आ गई हूँ, तो ऐसे करके सचमुच में मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हाँ वो लोग कह रहे हैं कि हाँ वो आ गई। वाह, कंग्रेचुलेशंस। आप अपनी पावर को अब आप खुद मैजिक वॉन्ड बन चुकी है। फॉर दिस इवेंट। Congratulations, and this थैंक is यू so good that you can start using your magic power on others also. And then what's your other sharing? मैम। एक ही थी, ये एक ही शेयर। बहुत पावरफुल है। नहीं, आपने बोला मेरी पहली शेयरिंग ये है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। नहीं, इससे पहले मैंने कभी कुछ शेयर नहीं किया था, इसलिए आज ये मेरी फर्स्ट शेयरिंग थी, ये मैं कह रही थी। डेब्यू था शेयरिंग का। yes. Anyone else wants to share or add anything from what we have read? कल हम देखेंगे किस तरह अल्कोहलिज्म से बाहर निकला जाता है। Yes, I have a technique, मैम। मैंने ना कहीं पढ़ा था, तो I'll share that technique with all of us. तो मैं, लेकिन मैम it's 7 now, so we must leave. आपको थोड़ा जल्दी जाना था ना, टाइम से जाना कल है। करते हैं। लास्ट सैटरडे वर्किंग डे होता है, so I have some work to do today. So there's a beautiful technique called LSD. तो उसमें, उसके थ्रू we can like get rid of any of our mental blocks. उसके लिए है वो टेक्निक ना। So LSD is actually a drug. एक ड्रग होती है। गोवा में सारे LSD ले लेगी तो हैप्पीनेस या तो वो, हाँ वो मतलब वही वाला जो एक्सटैटिक फील करने के लिए वो ड्रग होती है।
लेकिन एक्चुअली दिस पर्टिकुलर थिंग इज विद इन अस. तो उसमें LSD का ना एक्रोनिम है, सो कल लाइक विल टॉक अबाउट दैट. So it's about listening to what you are getting the thought, whatever the thought is coming in your mind, be it a negative thought. First, we have to listen to it. L for listen. Then comes S for stop. We have to stop that thought there and there. Like उसको stop करना है. Then we have to determine. अब वो stop कर दिया, वो thought नहीं आया, उसको वहां stop करके उसके ऊपर हमने अपना जो affirmation है ना वो impose करना है. एंड उसको स्टॉप करने के लिए वी हैव टू पिंच आवरसेल्फ कि मतलब वो थॉट आया, हम अगर जैसे मान लीजिए हमें कोई किसी बंदे कोई बोलना चाहता है, कोई हमें इरिटेट कर रहा है, बार बार एक बात बोल रहा है, बार बार एक बात बोल रहा है, बी इट लाइक कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, या फिर तू अल्कोहल पी ले पी ले पी ले, थोड़ा सा पी ले थोड़ा सा पी ले. तो उस थॉट को, वो थॉट भी आता है ना पहले, इट कम्स एज अ थॉट इन आवर माइंड, उसको पहले आने दो. नहीं सुनेंगे तो वो फिर से वापस से आएगा, है ना. अगर हम किसी की बात सुन लेते हैं तो वो बोल के शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए कि ठीक है सुन लिया इसने. तो वी हैव टू लिसन टू इट, देन वी हैव टू स्टॉप इट देयर. उसको पिंच करके उस थॉट को हमने स्टॉप कर लिया, और उसके बाद वी हैव टू इन्वोक आवर एफर्मेशन. वी हैव टू डिटर्मिन द थिंग, वी हैव टू डिक्लेयर दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. उसकी जगह हमने जो भी अपनी एफर्मेशन बोल रही, आई एम फ्री ऑफ एनी ऑफ द एडिक्शन. Any of the addiction you can take, be it the phone addiction, be it eating junk food वाला addiction, कुछ भी है ना, binge eating, binge watching and all. तो ये करके एंड मतलब मैंने काफी सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़े मैम इसमें मतलब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रिबाउंड किया. देयर वाज अ डॉक्टर, वो बहुत अच्छा, डॉक्टर्स तो मतलब काफी ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ही ऑलवेज हैड दिस मेंटल ब्लॉक कि मैं ना टॉप नहीं कर सकता. वो उसने प्लैब के एग्जाम देना था, उसको लगा कि मैं टॉप नहीं कर सकता, मैं टॉप नहीं करता, बट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ही हैड टू कम एज अ टॉपर. लेकिन उसको वो मेंटल ब्लॉक को उसने इसी तरीके से रिमूव किया ये LSD टेक्निक से. तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग मैम. सो या वी कैन ऑल ट्राई दैट कि कोई थॉट आ रहा है तो उसको एक बार सुनो, उसके बाद स्टॉप करो, लिसन, स्टॉप, देन डिक्लेयर. तो ये 3 चीज करके वी कैन वी कैन गेट रिड ऑफ अ मेंटल ब्लॉक. देयर आर ह्यूज मेनी मेंटल ब्लॉक्स, वी ऑल हैव. कोई किसी भी तरह के मेंटल ब्लॉक्स होते ही हैं हमारे मन में. तो चाहे वो अल्कोहलिज्म हो, सिगरेट स्मोकिंग हो, जंक फूड के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, इट्स लाइक वेरी इजी टू गेट लाइक नॉट दैट इजी, बट या वी हैव टू स्ट्रेट आउट थोड़ा सा करके फिर हम कर सकते हैं इसको. वी कैन गेट रिड ऑफ एनी ऑफ आवर बैड हैबिट्स. या दिस आई वांटेड टू शेयर मैम. Yeah. So we can actually correlate this technique that you said to what Dr. Joseph Murphy would be telling tomorrow. उनका भी तो ये था पहले यही था ना, पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ आई एम एन अल्कोहलिक और आई हैव दिस एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको च्यूइंग या जो भी था. उसके बाद सोचो कि हाँ मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. तो हमने यही दोनों फर्स्ट स्टेप जो आपके LS वाले जो स्टेप्स हैं ये हमने हाथ किए. And I'm sure that कल वो बहुत powerful कोई affirmation देंगे that I'm free, I'm sober, I'm this, जो repetition से अपने subconscious को हमको believe कराने होंगे. Subconscious तो believe कर ही लेता है ना, उसको तो सही और गलत पता नहीं होता है. So इस तरह ये भी थॉट बार बार आता है ना मैम, तो बार बार वो एफर्मेशन को हम रिपीट करेंगे तो वो थॉट जितनी बार आएगा, जितनी बार नेगेटिव थॉट हमें अटैक करेगा, उतनी बार हम उस पे पॉजिटिव उसका ऑपोजिट करते जाएंगे. सो या दिस वे वी कैन डू इट. एंड ऑब्वियसली मतलब इन दोनों का अमलगमेशन लेके वी आर ऑलवेज वर्किंग विद रॉन्डा. बर्न का भी वो ब्लेसिंग्स मतलब डिस्गाइज फ्रॉम ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज वो वाला भी, डॉक्टर मर्फी वाला भी. और अभी भी इन्होंने बोला था ये कि जरूर कोई भी एडिक्शन होता है पहले तो ये सोचो कि जरूर ये मुझको कुछ अच्छा सिखाने के लिए हुआ है, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही है. Absolutely. Yeah, so that's what Rhonda Byrne says, that turning mistakes, transforming mistakes into blessings. Yes, ma'am. Yeah, so nice, good, interesting topic this is for everyone who's addicted or who have any kind of an addiction. Yeah. Addiction पूरे दिन खाने से होता है, पूरे दिन खाना चाहिए होता है, पूरे दिन थोड़ी थोड़ी देर पे. Addiction फोन का बहुत ज्यादा होता है. There are people who are just checking their WhatsApp up and down, up and down, up and down. People have Instagram, social media addiction, big time. You know, social media is an addiction. मतलब मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि लोगों को डोपामिन मॉलिक्यूल जो होता है, फील गुड फैक्टर हमारे ब्रेन में, जितनी बार आप सोशल मीडिया पे जाते हो उतना बार डोपामिन किक हो रहा है. तो वो फील गुड फैक्टर आपको, आपका सोर्स ऑफ फीलिंग गुड बिकम सोशल मीडिया, जिसके कारण यू आर हेविली इनटू सोशल मीडिया एडिक्ट, यू नो, लाइक दैट.
एंड बिकॉज ऑफ विच आपको बार बार डोपामिन मॉलिक्यूल को किक मिल रहा है, फील गुड फैक्टर, तो आपको ग्रेटिफिकेशन सोशल मीडिया से मिलता है. So that is also a kind of addiction, and we don't realize that they're actually addictions. You know, that is the problem. We don't realize that they're addiction. We just feel that ठीक है, ये है जो है, जैसे we accept ourselves with all our flaws very easily, not wanting to become the best version of ourselves. So we have to constantly work on ourselves. You know, we have to constantly become the best version of ourselves. जो I would still urge that वो जो बुक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बीइंग सुपरनैचुरल, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, उसमें वो बताते हैं कि इस तरह से अपने नोन एरिया से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपकी रियल ग्रोथ नहीं होगी. You know, like when my son went to Bangalore to stay, so he has never washed his clothes and dried them, and you know, he always got like अपने मतलब घर में कोई कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. सो आई सी वो जैसे ही अपना उसका ये नोन जोन था यहाँ पे दिल्ली में, घर में सारे कंफर्ट, वी ऑलवेज हैव सम अमेजिंग फूड ऑन द प्लेट, यू नो, ऑलवेज लाइक, तो इस तरह कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी. एंड दीज बॉयज, यू नो, लाइक बोथ माय बॉयज आर सो यूज्ड टू ईटिंग, you know, very rich food, like they need that shahi mutton biryani and butter chicken, and that's the kind of खाना इन लोग के लिए बनता है. Me being a semi-vegetarian, तो मेरे लिए वेजिटेरियन बनता है, इन लोगों के लिए बहुत सारा. सो वो उस तरह से वहां जाके रहना एक हॉस्टल में, ऑल्दो वो विद ऑल दैट एफर्मेशन, उसको बहुत ही 5 स्टार काइंड ऑफ फैसिलिटीज वहां पे मिली हुई है, बट देन कपड़े वॉशिंग मशीन में खुद धोने पड़ते. तो वो अननोन जोन जैसे ही गया ना, आई कैन सी हिज ह्यूज ग्रोथ. इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो बच्चा हो गया है. अभी वो अपने रूम में, क्योंकि वहां बारिश हो रही होगी, तो वो कपड़े सुखाने के लिए वो क्या बोलते हैं ना उसको, वायर लेके आया है कोई कि मैं इसको टंगा दूंगा अपने रूम में, ये कर दूंगा. आई कुड नेवर इमेजिन दैट ही कुड डू एनीथिंग लाइक दैट. Then I asked him that how do you wash your clothes? So he said that, oh, there are lots of washing machines there. I just go and every day I'm putting the washing machine, and every day I'm putting clothes in the washing machine. I thought that he would do it only on Sundays. So itni sense of responsibility, इतना सेंस ऑफ फाइनेंशियल, यू नो, लाइक किस तरह से खर्चा करना है वो शेयर करता है कि यहाँ से ये नहीं. नाउ ही रियलाइजेस इट्स अ वेस्ट, एंड यू नो, लाइक आई डोंट वांट टू पुट मनी हियर, या बट देन आई विल डू इट हियर. So this kind of responsibility can only come, you know, to that child when he is away from me or away from home. So इस तरह से हमारे लिए भी जो इतना ज्यादा कंफर्ट नोन जोन होता है, हमको एक्चुअली उससे स्टेप आउट करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ काम हम जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे अगर वो पहली बार कभी नहीं है. सब लोग बोलते हैं एक्चुअली आज तक किया नहीं है ना, इसलिए मुझसे नहीं होगा. सो ऑलवेज से दैट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, राइट? आज से 10 साल के बाद भी पहली बार ही होगा. आज भी अगर करोगे वो वाला काम तो आज भी पहली बार ही होगा. गलती सिमिलर होगी, बल्कि समय के साथ साथ अगर आप 10 साल के बाद आप पहली बार वो काम करोगे तो और प्रॉब्लम होगी. तब तक आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न और रिजिड हो जाएंगे, यू नो, दे बिकम मोर सीमेंटेड. So it is better that whatever you need to do, anything new, suppose you've never driven a car, now आपके known zone में है that I don't think I can drive a car, okay? अब तो जरूर करो उसको, अपने आप को चैलेंज करते रहो. ठीक है? सो अब चैलेंज करो that yes, I will learn how to drive a car. First thing is अपने ड्राइविंग स्कूल में आप एनरोल करो, ठीक है? एंड सी हाउ यू टेक फ्रॉम देयर. सो नहीं तो हम अपने नोन जोन में फंसे रह जाएंगे. तो ये बहुत जरूरत है. सेम थिंग जो एडिक्शन के साथ है, ये हमारा कंफर्ट जोन है, नोन जोन हो गया. वी वांट टू स्टेप इनटू द अननोन. So Dr. Joe Dispenza call it known and unknown. I would call it the comfort zone and stepping out of the comfort zone. But whatever it is, that is अपने आप को चैलेंज कर, एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा है, अब मैं अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ. ठीक है? अपने आप को आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये है, मेरी हेल्थ ऐसी है, बट नाउ आई विल वर्क टुवर्ड्स माय हेल्थ, यू नो, जो भी चीज. एंड देन स्टेप इनटू द अननोन. ट्राई टू डू द थिंग्स यू हैव नेवर डन बिफोर. And that is how it is. Like when I traveled for the first time like that all by myself, like I've done like अपने मम्मी के घर में बहुत साल से भी आती जाती रहती हूँ, तो वो सारा. But then traveling for work, when I traveled, it was so difficult for me. You know, like I could not. मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी. मुझे लग रहा था कि पता नहीं होटल रूम है, it was like very weird feelings. Okay, but now it is a cakewalk because पहली बार अपने आप को चैलेंज किया. तो कोई भी चीज नया करोगे, I mean we are all from an era जहाँ पे हमने कंप्यूटर्स नहीं सीखे हैं. मतलब हमारी पढ़ाई लैपटॉप पे नहीं होती थी, जैसे आजकल के बच्चों की पढ़ाई सिर्फ लैपटॉप पे होती थी.
तो हमारी वजह से नहीं होती थी, तो वो भी सीखने के लिए अननोन जोन में स्टेप करना पड़ा ना. एंड आई एम सो गुड एट कंप्यूटर्स नाउ, लाइक यू टेल मी टू मेक एनी फाइल, एनी एडिट्स, एनीथिंग आई कैन डू. आई नो ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो वो अपना एक अननोन जोन में जाके ग्रोथ हुई है. नहीं तो हम कभी, जिस तरह का मेरा काम है टोटली डिजिटल टेक्निकल, ये कभी हो ही नहीं पाता है ना. तो ये हमको कॉन्स्टेंटली अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है. So that's it from our side, and so we'll take a log out and see you all tomorrow on a Sunday. Thanks to share your experiences. It's really inspiring for all of us every day. And you get lot of experiences. मतलब इससे इतना सीखने को मिलता है ना कि how people survive their life और कैसे enjoy करते हैं उस situations में भी. जैसे मतलब आप जब बताते हो deeply अपने experiences को तो बहुत अच्छा लगता है. नहीं, lot of women are facing this problem. मैं देखती हूँ ना, they've never traveled alone. मतलब उनको बोलो कि आप अभी सोलो ट्रिप के लिए थाईलैंड चले जाओ, तो उनको forget about थाईलैंड, पौंडीचेरी, ठीक है, तो वो बहुत सारे पैंग्स होंगे, कैसे जाओ, क्या करो, पूरे घर को उठा लेते हैं हम लोग कि मतलब सबको लगा के रखते हैं, आप ये कर देना, वो कर देना, कहाँ से. ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. So मेरी एक फ्रेंड एंड स्टूडेंट जरीन सिद्दीकी, बहुत आप में से बहुत लोग उनको जानते भी होंगे, पुणे में रहती हैं. तो वो उनका बिल्कुल उस वक्त डिवोर्स हो गया था उनके हस्बैंड से. उनके हस्बैंड बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो उनका डिवोर्स हो गया था अपने हस्बैंड से. उसके बाद जो अपने पेरेंट्स के यहाँ रहने आई, तो मदर फादर गुड, आई मीन ब्रिगेडियर उनके फादर हैं, और मतलब रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं. मदर वाज ऑलवेज अ होम मेकर. तो जरीन जब यहाँ पे आई तो उन्होंने जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा, उनसे शेयर कर रही थी कि मैम पहली बार जब मैं पेरेंट्स के यहाँ पे आई, और उनके 2 बच्चे भी हैं, तो बच्चे तो बहुत ही छोटे थे उस टाइम, मतलब तो बड़े हो गए क्योंकि शादी के बहुत कुछ साल हो गए. सो जब वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स के आई तो कहती हैं कि मुझे ये था कि मेरा बिल्कुल वहां पे रह के कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था. ठीक है, मतलब वो है ना सेल्फ एस्टीम या जो भी था वो सब खत्म हो गया था, और मुझे लग रहा था कि मैं आगे की जिंदगी क्या करूंगी, कैसे करूंगी. तो उनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग कि उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि शी सोल्ड ऑफ वन बिग बैंगल, यू नो, सोने की, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स से पेरेंट्स बहुत वेल ऑफ थे, बट उनको था कि आई नॉट टेक मनी फ्रॉम देम. उन्होंने वो कुछ लाख रुपए में अपना वो बेचा कंगन, और वीएलसीसी से अपना डीडीएचएन का कोर्स किया, और वो डायटेटिक्स किया बहुत साल पहले, आई थिंक 2014-15 में डायटेटिक्स का कोर्स उन्होंने पैसे से किया. फिर ऑफ कोर्स शी स्टार्टेड अर्निंग मनी. फिर उन्होंने पैसे जोड़े, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मुझे डिपेंडेंसी अब अपनी जिंदगी में नहीं लानी थी, क्योंकि इतने साल उन्होंने, जब वो दूसरे घर में रहती थी अपने हस्बैंड एंड इन-लॉज के यहाँ, तो वहां पे वही है ना कि मतलब कुछ ऐसा होता गया कि where she started losing herself, and then she decided only to gain back her confidence कि मैं सोलो ट्रिप करूंगी ग्रीस. ओके, ग्रीस सोलो ट्रिप उनकी पहली जिंदगी की सोलो ट्रिप थी. एंड फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्रॉम वीजा एप्लीकेशन टू नथिंग मैं किसी से पूछूंगी, मैं सीख के करूंगी, बिकॉज आई नीड टू लर्न ऑल दिस, और मुझे अपनी जिंदगी दोबारा बिल्ड करनी है. एंड फिर उन्होंने मतलब कह रही थी कि मैं वीजा अप्लाई किया गूगल करके कि किस तरह से करते हैं, और फिर उसके बाद वो ग्रीस गई. कहती है मैं रात को 1:30 बजे मेरी फ्लाइट पहुंची, और सबने बोला था कि ग्रीस में ऐसे किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जहां पे भी उनको जाना था कहती है कि मुझे सी में बोट लेके जाना था इस छोर से उस छोर तक. जो उनका होटल था वो आइलैंड पे था, तो कहती है वो होटल मैंने बुक किया था, और 1:30 बजे मैं पूरी तरह से सिर्फ ट्रस्ट बेसिस पे गई वहां पे. फिर कह रही थी कि मैंने बहुत सारे लोगों से मिली, क्योंकि जब वो ट्रैक पे जा रही थी सेंटोरिनी में, तो कहती हैं कि वहाँ बहुत सारे और भी लोग थे अलग अलग देशों के, वहां से मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, एंड एवरीबडी वाज लाइक ओह यू कम अलोन. बट कहती है वहां जाकर मुझे पता लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारी ऐसे विमेन है who really need to kind of want to stand on their feet, and who've been alone and looking for partners कि किसके साथ ट्रैवल पे जाएं. बट she managed all that, and that was the best trip of her life. Of course, like उसके बाद अब उनके पास पार्टनर है, they are madly in love with each other. She already, I mean, they don't want to get married. Whenever I tell her that you want to get married to Parth, she's like, ma'am, look, I have had enough of marriage now, so this is what. But then yes, they live together. Of course, he's a pilot, he lives in Mumbai, she's in Pune.
But then, yeah, this is their story. And she has become like, she's made a name in the industry. She's one of the best in her fields, a great fitness champ, and she's helping others do that. और अब तो बहुत पैसा वैसा सब आ गया उनके पास, अब वो पार्थ के साथ travel करती हैं हर जगह. So this has been a life. So yeah, I mean, like those years when she was totally on her own and absolutely single, 4 साल कुछ थे जब वो बिल्कुल अकेली और वैसी थी. But yeah, that is how it works. So there's always a first time. It's always, you know, doing things that you are fearing. Okay, Yeah. that is the best way of growing in life. Yeah. Okay. So chalo, thank you so much. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. For your Thank sharing. you, ma'am. Thank you.